ابھی مجھے نہیں پتا کیونکہ تو قرآن اگر کہتا اگر ہے، آپ سن لیں ایک سن عیسائی لیں کو سن لیں، قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرنا تو اچھی طرح، یہ نہ ہو ٹھیک ہے جی، کہ تم کم علمی میں کسی کو نقصان ٹھیک ہے پہنچا بیٹھو۔ میرے نزدیک آپ ٹھیک ہے فاسق ہیں اور میں اس خبر کی تحقیق کروں گا۔ میں اگلی ابھی بات کریں۔ آپ کو بھی اسی بات پہ لے کر آتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے سپیکر میں بائبل پڑھے اور حضرت لوط والا اور حضرت داؤد والا واقعہ سنائے، کیا اس پہ 295 سی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ پہلے مثال پیش کریں۔ بھائی میں مثال پیش تو کر رہا ہوں، تو اور کیا بس بتا رہا ٹھیک ہوں ہے، میں آپ کو؟ پھر اپنی اور میری بات کریں۔ تو ابھی میں کیا بات میں بتا نے رہا ہوں آپ کو کہ نہیں اگر کہا میں کہ اگر بائبل، کوئی چلے بندہ ٹھیک ہے، یہ سن لیں میں بتاتا سن لیں ہوں، سن لیں میں سن لیں سن بائبل لیں پڑھ رہا ہوں سپیکر میں کھڑا ہو کے، بجائے اس کے بائبل پڑھ رہا ہوں، بجائے اس کے مجھ پہ بجائے اس کے فتویٰ لگتا ہے یا سن نہیں لیں لگتا بتائیں؟ بجائے اس کے کہ ہم کسی کو کہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کر رہا ہو اور اگر کوئی بندہ وہ کر رہا ہو۔ تو بھائی آپ ہیں اسی پہ تو انہوں نے قادیانی، بولا تھا، اسی آپ پہ ہیں جب وہ سن حوالہ لینا پڑھ کے سنایا گیا، تو سن بھائی لیں۔ سن لینا، ہاں جی، آپ کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے خلاف اسٹیٹمنٹ لے لوں، حالانکہ میں نے یہ کام میں کرنا ہوں نا، میں کر سکتا بھائی ہوں، میں نہیں دے رہا، میں نہیں مانگ رہا، مجھے پتا لیکن آپ دے ہی نہیں آپ سکتے۔ قادیانی ہیں، آپ کہاں بھائی، آپ آپ وہ قادیانی ہیں، کام چھوڑ بیٹھے ہیں۔ سن لیں، نہیں میں بالکل آپ چھوڑ بیٹھا ہوں، میں بڑا آپ کمزور آدمی، میں بڑا آپ کمزور وابی ہیں، آدمی ہوں، سن لیں میری آپ بات ہے۔ وابی ہیں، سن لیں، امتیاز آپ صاحب وابی ہیں، امتیاز صاحب امتیاز صاحب آپ امتیاز صاحب فاسق ہیں، سن لینا۔ امتیاز ہاں صاحب جی، ہاں جی، سنا لیں جی، آپ آپ کے بتائیں۔ اور میرے درمیان ٹائم ٹھیک ہے لگا جی، دیتے ہیں، بہت بنیادی شور ہو رہا کیا ہے، پوری جھگڑا بات ہے؟ ہے۔ کیا یہ جھگڑے ہیں یا کوئی اور بنیاد ہے ہمارے درمیان؟ چلو ٹائم لگاتے ہیں، بہت شور ہو رہا ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہمارے رہی۔ درمیان بڑے ایک مسئلے منٹ ہیں۔ لگا دوں؟ ٹھیک ہے، نہیں بڑے نہیں مسئلے نہیں تو میں ٹھیک ہے، بہرحال بنیاد کی میں بات کر زیادہ رہا ہوں۔ مسائل تو کیا مسلمانوں کے بحث والی مسلمانوں بات کے ہے درمیان نہیں ہو ہے، جاتے ہیں، یہی مسائل بات تو تھی کہ بھائی کے موسیٰ بھائی کے درمیان صاحب ہو جاتے ہیں۔ اگر تو خود آپ گئے کے ہیں تو اور پھر ٹھیک میرے ہے۔ درمیان جو اختلاف ہے، جو بنیاد ہے، کیا وہ مرزا صاحب کی کتابوں، مرزا صاحب کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے ہاں جی ان سے ہے، پہلے؟ ہاں جی ہے، کون ہے؟ ہمارے درمیان حدیثوں کا جو مجموعہ ہے، اس میں ہاں، کے درمیان میں بہت سارا اختلاف ہے۔ یہ بات آپ تو آپ کو جو مرزا صاحب نے کی ہے، تو یہ وہی تو تو میں پھر کہہ رہا مرزا ہوں نا، صاحب بھی ہمارے آگے، اس کا تو مطلب مرزا اختلاف صاحب کدھر ہوا؟ اختلاف ہے، اس کا پیچھے مطلب گیا کہ آگے گیا؟ مرزا صاحب پہ، مرزا صاحب پہ، اختلاف پیچھے گیا کہ آگے گیا؟ مرزا صاحب پہ بھائی وہ دیکھو چیز کون سی یہ آ رہی ہے بات اندر؟ ہی مرزا صاحب نے حدیثیں کی آ ہوئی ہے رہی ہیں۔ نا۔ بھائی ہمارے انہوں نے درمیان جو یہ اختلاف بات جو ہے، آپ مجھے بتا رہے ہیں، ہاں یہ بات مرزا ہاں، صاحب نے کہی ہوئی ہے، تو اختلاف کہاں پہ ہے؟ مرزا صاحب پھر تو تیری مرضی انہوں ہے، نے تو کہا جو مرضی ہے، کہاں چٹا کری رکھو۔ بھائی انہوں نے تو انہوں کہا، نے نہیں اچھا اور کہا، کون ہے؟ انہوں نے نہیں کہا، آپ نے خود یہ سے سرچ آپ کیا نے 200-250 سال بعد دین کا بیڑا گرک حدیثوں سے کر دیا۔ حدیث، ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ حدیث سے 200-250 سال بعد لکھی گئی؟ ٹائم لگا ہاں رہی ہوں، بالکل مانتے ہیں۔ ہاں ٹائم جی، لگا رہی ہوں، ٹائم لگا رہی ہاں ہوں جی، پلیز۔ ون سیکنڈ باجی یار، باجی تسی جرا دو کوئی ہمارا نہیں ٹائم، اختلاف، سبھی کو لڑائی نہیں ہو رہی۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ حدیث سے 200-250 سال اچھا بعد لکھی گئی وہ ہے؟ میں سن لے، نہیں نہیں نہیں، وہ جو حوالہ میں آپ کو نہیں چاہیے تھا، وہ جو جھوٹے نبی والا یار، میں حوالہ نے نہیں ابھی چاہیے؟ کیا ابھی آپ نے بولا تھا حوالہ لگاؤ، وہ حوالہ آ یار گیا، ابھی وہ جھوٹے یہ جو مسیحوں بات والا، جھوٹے اس نبی والا۔ کو ذرا سن لیں، جو بات چل رہی ہے نا اس کو کیونکہ چلا لیں۔ جھوٹے مسیح، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جھوٹے مسیح، اور بڑے بڑے جھوٹے معجزے مسیح، جھوٹے اور مسیح، جھوٹے نبی اور جھوٹے جھوٹے مسیح، نبی اور جھوٹے ٹھیک نبی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جھوٹے نبی ٹھیک ہے، اور جھوٹے نبی۔ ٹھیک ہے، سر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، حوالہ حوالہ دے دیں ذرا، دکھاؤں؟ ریفرنس، متی کی ریفرنس، ہے، متی کی 30:8-24۔ پوری ریفرنس، پوری آیت پڑھ دیں ذرا، بھائی متی کی 30:8-24 پوری نکال لو۔ آیت پڑھیں، آپ کے پاس ریفرنس ہے نا، پوری ہاں آیت جی، پڑھیں۔ آج پوری بات، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے معجزے اور نشانیاں دکھا کر، ہاں، خیر جبھی مجھے گاڑی، کیونکہ میں چلا رہا ہوں تو مجھے دھیان ادھر کرنا پڑنا یہ ہے، ایک کام منٹ غلط ہے، ڈرائیو کرتے ہوئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سوری، لوگوں مجھے سارا دل لڑتا ہے آپ کو، یہ کچھ اور نہیں نہیں سائڈ ہونے پہ تو کرنی علاوہ اور بات۔ کون گل کرے؟ تسی کرنے کرنی گل وہ چلا نہیں رہے ایک گا منٹ تو کرن دیو۔ ایک منٹ دے دو یار، 2 منٹ دے دیو، کچھ نہیں اور ہو کسی گیا۔ نے واضح کام بھی نہیں ہے نہ زور لانا ہے، یہ امتیاز مسئلہ ہی کر سکتا ہے گل، اور سارا نہیں دن اتنے کوئی لڑائی گل کرو کا۔ تو گاڑی چلاتے ہوئے نہ کام کیا کرو۔ نہیں میں نا وہ گھس رہا ہوں ایئرپورٹ میں کہیں پہ، تو اس لیے مجھے تھوڑی سی، میں وہ نا اگر آپ کہیں تو میں لگا دیتا ہوں اتنے اسکرین پہ یار آپ کا۔ جذباتی ہونے کی بسرا ضرورت صاحب نہیں تسی مجھے ہوتی پاویں ہے۔ ریفرنس بھیج دیا واٹس ایپ تے میں یا ایتھے واٹس ایپ پہ لانا تے بھیج ایتھے دوں لا گا جی۔ دیو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال وہ ہن جڑی جو میں 2 باتیں جو کی ہیں، ایک میں نے ہاں کی ٹھیک تھی، ہے، میں ہاں، اور ایک جو اگر انہوں نے کی تھی ختم نبوت یونیورسٹی صاحب نے، ہاں دونوں کے حوالے موجود ہیں۔
किताबें मौजूद है आपका, वो आपको मुझे, चाहिए मैं तो आपको एक बात बताऊं, वो वाला मैंने जी। पढ़ा हुआ है, वो जो बात जैसे वो करे थे ना वैसे वो रेफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने कहा था नहीं, पूरा पढ़े। झूठो नबी की झूठे देखे ना, उनके मुताबिक भी झूठे नबी आएंगे ना, बिल्कुल बाइबल से तो आएंगे, साबित हो गया। हाँ, बिल्कुल आएंगे। तो क्या वो कह सकते हैं, अपने कीदे का इजहार कर सकते हैं आपके मुंह पे बैठ के? अच्छा, तो आपके नजदीक वो रसूलुल्लाह को क्या सच्चा नबी मानते हैं? तो मैं वही तो कह रहा हूं तो कि जब अगर आपके ये तो, सामने वो अगर गुस्ताखी वो है, नहीं कहते, आपके सामने वो अगर वो गुस्ताखी है, नहीं लेकिन कहते तो वही आपको गुस्ताखी, क्या मसला है? भाई मैं बता तो रहा हूं, मसला हाँ। ये है कि आपके सामने हम असूल रख रहे हैं कि भाई इस असूल से चलो, जो आप आपको असूल आप कबूल मसीहों हो। आप मसीहियों का असूल लेंगे भाई कि नहीं, हम रसूलुल्लाह का असूल आपको लेंगे? ये असूल पे आपको ये असूल खड़ा मिर्जा साहब करेंगे का, कि सुन भाई ले, जो असूल असूल आपको मसीहियों का कबूल लेना नहीं है है या अपने मिर्जा लिए, साहब का लेना वो है? हमारे पे अप्लाई ना करें। भाई सुन ले, मैं वही तो बता रहा हूँ, वही असूल बता रहा किसका हूँ लेना है, कि मिर्जा जो साहब का असूल या मसीहियों का? मैं तो नहीं नहीं, लेता, मैं तो उनकी किताब असूल को नहीं जिससे, मानता। बताता हूँ, जब मैं मेरे बताता सामने हूँ, मैं बैठे कि मैं बताता हूँ। बात करूंगा, असूल उसका आपने लेना किससे है असूल लेना जिसके है? साथ आप बात कर रहे हैं। नहीं, असूल मुझसे उसका लेना लेना है जिसके है, साथ आप बात कर रहे है, हैं, उसको कबूल हो उससे और लेना है। आपको भी कबूल हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप बाद दोनों को बताइए कबूल ही नबूवत, नहीं है दज्जाल और असूल, कज़्ज़ाब होंगे। सुन ले अगर कोई इस असूल को नहीं मानता तो ना जा, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। भाई, मैंने मैं अपने कह रहा नबी हूँ से कि असूल अगर, लेना है, मैंने असूल लेना है हाँ कुरान और सुन्नत। अगला उस असूल को मानता है या नहीं? हाँ, तो हाँ, अगला अगर वो अगला इसका कुरान रेफरेंस रसूल को मांगे नहीं मानता, मुझसे, फिर क्या सुन ले, करेंगे? सुन ले, अगला कुरान अगर वो रसूल ये को नहीं कहे मानता, कि ये जो असूल तुम बना रहे हो इसका रेफरेंस हाँ है या तुम अपनी बुग़्ज़ निकाल रहे हो, अपना गुस्सा निकाल रहे हो, वो भाई मैं वो बंद का। उसका कुरान और सुन्नत से तल्लक ही नहीं है, वो किसका? क्या करे फिर? किसका? असूल बनाना है तो ना, उसका, हम तो भाई ओवरऑल बात कर रहे हैं ना सुन ले, कि सुन ले, असूल किस तरह बनाना है। सुन ले, मैं असूल बताता हूँ। बनाना है हमने ईसाइयों को मद्देनजर रखते हुए, भाईजान, यहूदियों को रखते भाईजान, हुए, भाईजान, नहीं नहीं, उनको कोई क्या ना, जंबा मसीहियों को साहब के नहीं, मानतों को, हर एक को मेरी कोई रखते हुए, उनसे, सुन कादियान। ले, ये कोई मनाजरे हाँ की शराइत तय नहीं हो रही। जो हमारे बुनियाद है ना, जो अकीदे हैं, वो किसी ऐसे असूल की बेंट नहीं कर सकते कि आप किसी के। भाई, हम बातचीत की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो बात हो रही थी वो बातचीत के ऊपर हो रही थी कि बातचीत किस असूल के तहत करनी है। वो बातचीत आपने असूल कायम जो किया था वो आपके गले पड़ गया है, नहीं, वो कोई आप गले नहीं उसको पड़ा, अपना नहीं सकते। कोई गले नहीं आप पड़ा। उसको, हाँ ठीक है, वही कह रहा हूँ ना कि आप अपना कीदा बयान कर सकते हैं हमारे मुंह पे बैठ के, हाँ, कर सकते हैं, आप कर सकते कर हैं, सकते हैं कि किसके मुंह पे बैठ के? हमारे मुंह पे बैठ के अपना किताब बयान कर सकते अगर हैं। आपको तकलीफ देता हो, अगर आपको लगता हो कि ये शातमियत है, हम नहीं करेंगे बयान। ठीक है, आप मेरे सामने मिर्जा साहब पे दुरूद सलाम ना बेचे, मेरे लिए शातमियत है, 1122 तो साहब मैं भी मुझे उनको जरा कुछ नहीं आपकी कहूंगा, शातमियत, सुन ले, सुन ले, सुन मैं भी ले। उनको कुछ नहीं पहले कहूंगा। मुझे अब आप मान गए, हाँ अब जी, हाँ आपने जी, इस खत्म बात से साहब, पीछे नहीं हटना, हाँ जी, खत्म अब आपने इस बात से पीछे मुझे नहीं इनसे हटना, बात करने बात दे, खत्म होगी। जी 1122 साहब मुझे इनसे बात करने दे पहले। आप कर मैं ले कर रहा सर, था मैं तो हाँ रुका हुआ हूँ, हाँ मैंने जी, तो बात ही नहीं की। ले जी, शुक्रिया इम्तियाज शुक्रिया बसरा शुक्रिया साहब इस बात को मान गए हैं शुक्रिया शुक्रिया। कि इनके कौन सी कहा कि बात है? अगर आपको तकलीफ देती है तो हाँ मैं जी वो नहीं एक करूंगा। मिनट मुझे हाँ, इनका साहब मिर्जा मेरी गुलाम बात, अहमद ये का, सुन बात, ले, सुन ले, 1122 इम्तियाज साहब ऐसा ना करो, ज्यादा नहीं करनी, ज्यादा नहीं करनी इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब ज्यादा नहीं करनी। गल ये है, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਪੜਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਮਤ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਗਈ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਤ ਗੱਲ ਖਤਮ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋ ਗਈ। ਗਈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਆਪਣਾ ਗਈ ਨਾ ਅਕੀਦਾ ਹੁਣ। ਬਿਆਨ ਕਰਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ तो एज इट इज मैं भी अपना अकीदा बयान करने च आजाद हां। जी जी भाई मैं यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बार-बार ਗੱਲ ही तो ना करांगा। साहब अच्छा, मेरी ਗੱਲ अल्लामा ਮੇਰੀ ਗੱਲ आदम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नज़ीर ਮੇਰੀ हाफिज़ ਗੱਲ खत्म हो अल्लाह गई। ताला साहब भी हमें इजाजत अल्लाह दे नसर दियो, अजीज मौजूद ने, इजाजत दे ते दो इस तो पहले कि मैनू डांट पै जे मैं चुप कर जांदा। ਨਹੀਂ जी ਮੈਨੂੰ ना, ਮੌਕਾ ਅੱਛਾ, ਦਿਓ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਘੰਟਾ ਰਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬੱਟ ਲੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਬੱਟ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਯਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਸਾਂ ਉਸ ਪਿਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਹਰਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰੀ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਉਤਲਾ ਤੇ ਖੁਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ उनको दे दे फिर आप ले लेना नहीं मैं बाद साहब को 1 मिनट नहीं देने ਮੈਂ ਢੋਲ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ अच्छा बाद साहब को उतार दे जी ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂਜੀ मैंने पूछा मैंने ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1122 ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ WhatsApp ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਆ ਰੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਬਾਬਾ ਚੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਾਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਾਲ ਮੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸੂਲ ਲੈ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੋਣਾ ਖਾਬ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 1 2 ਲੱਖ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਮਾਨ ਰੁਸ਼ਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਡਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਡਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਮਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤਾਨ ਤਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰ ਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦੀ ਮੱਕਰ ਦੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਓ ਸਵਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਵਣਗੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਜਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਈਦਾ ਜਵੇਰੀਆ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੂਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਮੋਸ਼ ਖਾਮੋਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਦੀ, ਧੋਖੇ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, कुरान पेश करे, हदीस पेश करे, तो दावा करे आओ कुरान मेरे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, कुरान से बात करें। क्या असी कदे क्रिश्चियन हुए क्या? कदे क्रिश्चियन दे अगे असां क्या कि मेरे ते तुहाडे दरमियान बाइबल मुश्तरक है, आओ बाइबल से बात करें। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਸਬਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੇ ਸਹਾਵਾਂਗੇ ਵਾਬੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए। नहीं उतार दें, अच्छा किया आपने, आप लेट हो गई थी शायद। अच्छा बात ये है, सफिया साहिबा को टाइम मिलेगा मुझे भी या नहीं? हाँ जी, आप जरूर बोलें। पता है क्या, मुझे नीचे भी लोग लिख रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे इतनी जल्दी। अच्छा बाजी आप एक काम करें, अस्सलाम वालेकुम सफिया साहिबा, एक 2 मिनट का टाइम लगा दें सबका, उससे ज्यादा किसी को ना बोलने दें, ये बेहतर रहेगा। बिलाल खुद माना है, उसको डिनाई कर रहे हैं हमें नज़ीर। बिलाल कहता है कि मेरी तरफ झूठा इल्जाम ना लगाओ, ट्रूथ सीकर साहब मेरी तरफ झूठा इल्जाम ना लगाओ, फिर मैं कोई इल्जाम लगाऊंगा आपसे बर्दाश्त नहीं होना, लिहाजा मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना करें। सफिया साहिबा मुझे कुछ टाइम मिलेगा प्लीज? मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ ऐसी इल्जाम ना लगाए, मेहरबानी करें, फिर आपको दुख होगा, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा सवाल मेरा, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलें आप। सफिया साहिबा आप इस चीज की गवाह हैं, और मैं आपसे एज अ मुसलमान या जो भी हैं इंसान होने की हैसियत से सच्ची गवाही चाहता हूँ। अभी जो अमर नज़ीर ने ऊपर आके ये बात कही है कि झूठा इल्जाम लगाया गया, और उसकी तायीद इस शयान अली ने की है। क्या शयान अली ने ये नहीं कहा था कि बाइबल में से मुझे हवाला दो? पहली बात तो ये है, तो मैंने कहा था कि मैं मान जाऊंगा, ये मैंने कहा था मैं मान जाऊंगा। उन्होंने हवाला मांगा, वो रिकॉर्डिंग निकाल लो जो भट्ट साहब ने, सुन लो जो भट्ट साहब ने बात की है, अगर वो बात मैंने की हो कि बाइबल से हवाला निकालो और मैं मान जाऊंगा, अल्लाह की लानत हो मुझ पे, और अगर किसी ने झूठ बोला तो अल्लाह की लानत हो उस पे। बिलाल हवाला की ये माना था, माने या ना माने, ये बाइबल का हवाला है। मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ। आप ठीक लोग है, आप मेरी बात तो सुन लें। पिछले आधे घंटे में माजरत मैंने सबको नीचे उतारा है। भाई सफिया की बात सुने जी मेरी बात सुने, मैं सबको नीचे उतारा है। पहली बात तो ये है, वल्लाह बाखुदा मुझे पंजाबी मुश्किल से समझ आती है, और जब आप लोग तेज बोलते हो ना तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती है। एक जो हवाला मांगा था बिल्कुल, लेकिन यही बात है कि होश से आप जो है ये ना लें कि मुझे क्या समझ आई है, मैंने कोई पुट्ठा जवाब दे देना है। अब मैं बारी बारी सबको लेती हूँ और आप बात करें। मुझे नहीं समझ आ रही है, इतनी जल्दी मैं घबरा गई हूँ कि किसको कैसे रोकूं। आमिर भाई आप बात करें, आप अच्छा, आपने 5 मिनट बात करनी, आप करें आराम से। लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्या मैंने भट्ट साहब को रोका उनकी गुफ्तगू के दौरान? क्या मैंने उनको कहा कि बात खत्म कर दें? भट्ट साहब की क्यों चीखें निकल गई हैं? इसलिए कि भट्ट साहब ने झूठ बोला और वो पकड़ा गया। जब एक बंदा झूठ बोलता है, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा कि बिलाल भाई ने कहा है कि आप बाइबल का हवाला दे दो तो हम उसको कबूल कर लेंगे। मैंने ये नहीं कहा उसने, मैं ये कह ही नहीं सकता। बिलाल अगर ये बात कहे तो बिलाल को तो हमेशा के लिए टिकटॉक बंद करवा देनी पड़ेगी। जो बाइबल की किसी भी तहरीर को जिसकी कुरान ने तस्दीक नहीं की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में कि ये जो बनी इसराइली रवायात हैं तुम इनकी ना तस्दीक करो ना इनकी तकजीब करो। कैसे बिलाल ये बात कह सकता है तुम बाइबल की कोई ऐसी इबारत पेश कर दो मैं उसको कबूल कर लूंगा? ये झूठ बोला भट्ट साहब ने,
और उसने झूठ कहा इनकी हवाला विरासत दे, है। हवाला दे, मैंने ये सुना था। हाँ, हवाला मुझे भी पता है। हवाला वो कई दफा हवाला मुखालिफ से इसलिए मांगा जाता है कि ये पता चल रहा होता है कि ये हवाला मिस कोड कर रहा है या पूरा नहीं पढ़ रहा है या जानबूझ के उसके साथ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए कहा जाता है हवाला सामने लगाओ, लफज ब लफज वो तहरीर पढ़ के दिखाओ, कहाँ है वो हवाला, पढ़ के दिखाओ, वो आयत पूरी पढ़ो, वो जुमला पूरा पढ़ो। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ये कह रहा है कि तुम लाओगे तो मैं उसको कबूल कर लूंगा। लेकिन ये ऐसे झूठे लोग हैं कि सारा दिन इनका यही कारोबार है, यही धंधा है। जितनी बार भी पकड़े जाते हैं, एक जगह से पकड़े जाते हैं, दूसरी जगह जाके दुकान खोल लेते हैं। बंदे को शर्म करनी चाहिए कि ये टिकटॉक है, मैंने जैसे कहा ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यहाँ पर आप जो भी बात करते हैं ना उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो आपको भागने नहीं देती। अब भट्ट साहब की ये रिकॉर्डिंग हो गई है कि भट्ट साहब ने झूठ बोला है, अजीम भट्ट साहब नाम रखा हुआ है कि जी मैं अजीम भट्ट हूँ, और झूठ बोला है सबके सामने और कहा है कि बिलाल भाई ने ये बात कही है। दूसरी बात ये है कि वो जो 1122 बात कर रहा था, भाई हमारा ये मौका भी नहीं है कि हम उस तरह हैं जिस तरह मिर्जाई हैं इस्लाम के सामने। मतलब बाइबल का और कुरान का इस तरह से कंपैरिजन करना और ये कहना कि देखो जिस तरह बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं तो आपके लिए हुज्जत होनी चाहिए या क्रिश्चियनों को ये इजाज़त होनी चाहिए। भाई हम क्रिश्चियनों को क्यों ये इजाज़त दें जबकि हम उनकी उसको मानते ही नहीं, शरीयत को मानते ही नहीं, हम उसको मनसूख समझते हैं, तो हम उनको क्यों ये इजाज़त दें। हाँ, वो गाली देना चाहें, अपने घर बैठ के गाली दे सकते हैं, जितनी चाहें गालियां दें, लेकिन हमारे सामने अगर एक बंदा हमारी शरीयत को पकड़कर ये कहता है आखिरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, देखो देखो शरीयत के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जिक्र है, देखो सूरह जुमा में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जिक्र है, देखो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसी से मैंने नबूवत खत्म कर दी, इसी से मैंने नबूवत जारी कर दी। ये भट्ट साहब के अल्फाज हैं, कोड एंड कोड। अजीम भट्ट साहब इसलिए अजीम है, वो कहते हैं कि इस आयत से मिर्जा साहब ने, इनके मसीह मऊद ने नबूवत बंद भी साबित की है, नबूवत जारी भी साबित की है। ओ भाई हमारी शरीयत के साथ ये खिलवाड़ करो, ऊपर से ये शातमियतें करो जो तुम सारा दिन यहाँ पर टिकटॉक पर कर रहे हो, और मिसालें तुम क्रिश्चियनों की दो। क्रिश्चियनों के साथ तो हमारा कोई बिल्कुल घर ही अलग है, उनके साथ हमारा लेना देना ही कोई नहीं, हम उनके पाबंदी नहीं है। आपका और हमारा बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है। किसी अहले किताब से या किसी भी मजहब से आपका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि तमाम अहले मज़ाहब के उनके अपने अपनी शनाख्त है, अपने अपने घर हैं, अपनी अपनी शनाख्त के साथ वो अपनी अपनी बात करते हैं। आपकी तो अपनी शनाख्त ही कोई नहीं, आपकी तो अपनी अलग आइडेंटिटी कोई नहीं। आप मुसलमानों वाली आइडेंटिटी छीन कर लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये सारे ये काफिर हैं, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे पास है, ये सारे फारिग हैं। ये वारदात तो कभी किसी ने नहीं की। तो इसलिए ये मिसाल तो उसको देनी चाहिए जिसका इस तरह का केस हो। हमारा तो इस तरह का केस ही नहीं है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके असल वारिस हम हैं। हमारी शरीयत अलग है, उनकी शरीयत को हम मनसूख समझते हैं। तो उनको हमारे सामने ये जुर्रत नहीं हो सकती वो हमारे सामने बैठ के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई इस तरह का तौहीन आमेज लफ्ज़ बोलें। क्यों? हम उनकी शरीयत को मनसूख समझते हैं। हाँ, गाली देनी हो तो वो गाली अपने घर से बैठ के दे सकते हैं, लेकिन आपका मामला ये है कि आप जिस शरीयत को हाथ में पकड़ कर बात करें, उस शरीयत में लिखा हुआ है करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, 30 के करीब झूठे आएंगे, दज्जाल और कज़ाब, और सब के सब खुद को नबी कहेंगे। ये वो शरीयत है जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है। इसकी मनसूखी का ऐलान करके अपनी अलग शरीयत बयान करें। हमारा आपका झगड़ा ही कोई नहीं। जिस तरह क्रिश्चियन अलग हैं, आप भी अलग हैं, लेकिन अगर आप इसको पकड़ेंगे तो इसकी हद आप पर लगेगी। कज़ाब दज्जाल जो लिखा हुआ शरीयत में वो बोला जाएगा। है कुछ जज़ाकल्लाह आमिर भाई। अब मैं जो बड़ भाई हैं ना उनको लेती हूँ ताकि वो अपनी बात कर सके, ताकि एक एक बंदा अलग अलग बात कर सके। क्या बोला? सॉरी। अब मैं वो फतमे नबूवत बड़ भाई है ना उनको लेती हूँ ताकि वो आपकी सारी बातों का जवाब दे सके। इस तरह से किसी को समझ नहीं आ रही थी बात। हाँ, उनको कहें जो बात करनी है करें अपने टाइम में, मेरे टाइम में बोलें ना, बस बिल्कुल ठीक है। बेशक उनको मुझे नीचे उतार दे, अपने टाइम में बात कर लें। जो ज्यादा बतूनी अपने आप को समझता है उसकी एक एक बात को मैं नोट करता हूँ, उसका जवाब देता हूँ, अभी लग पता जाता है। तकरीबन आपने 4 मिनट लिए हैं तो मैं उनको भी इतना ही टाइम। ठीक है, बुलाएं भट्ट साहब को। अच्छा, आप माइक म्यूट कर लें।
नहीं तो आप फिर कर दें, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। जी ठीक है। और किसी और के टाइम में अगर टाइम खुला तो फिर मुझे नीचे उतारना पड़ेगा, आप लोग जो भी इसको कहें, लेकिन हम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं, एक दूसरे से बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट तो की है, नज़र नहीं आ रही मुझे। अभी नीचे तो थे, कहाँ गए? नहीं, मुझे लगता है कि वो अभी नीचे थे। अब नहीं आपको दिखाई देंगे, अब नहीं दिखाई देंगे, ये उतनी देर तक ही दिखाई देते हैं जितनी देर तक मैं दिखाई नहीं देता। इंशाल्लाह नहीं दिखाई देंगे आपको। बुलाएं। मैं ट्रुथ सीकर भाई को ले लेती हूँ, फिर वो फिर दे देंगे हाँ आपको करे, दोबारा। जो भी अपने आप को ज्यादा समझता है उसकी बड़ी वोकैबुलरी है, बड़ा चरब जुबान है, बड़े दलाइल हैं, करे बात, 4 मिनट बात करे, बेशक शुक्र भाई, 1 मिनट एक्स्ट्रा दें आपके उसको। पास 4 मिनट हैं। नहीं 4 मिनट के बाद मेरा एक सवाल है आमिर नज़ीर हाँ, साहब से। सवाल नहीं करना, अपनी बात करनी 4 मिनट में। एक सवाल है ना ओ भाई, बात। सवाल का जवाब अपने टाइम में मैं दूंगा, कर लो। 4 मिनट आपकी बारी है, मैं म्यूट करने लगा, मैं बिजी हूँ, मैं सुनूंगा आपकी बात। जो भी आपका सवाल होगा मैं अपने टाइम में आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और अपना मौका भी रखूंगा आपके सामने। चलो करो बात। मैं सिर्फ छोटा सा सवाल आपसे करना है, उसका बस जवाब दे छोटा दें। सा सवाल क्या, ये कोई मतलब है कि होने लगा है कोई क्वेश्चन आंसर जो सेशन उन्होंने है? बात की है, आप बात उसको कर जो ले है हौसले जवाब से, देना इतना चाहते हैं। गालियों पे ना आए प्लीज, बात कर किसने ले। गाली दी है? किसने गाली, कौन सी गाली दी है? आप बहुत इस वक्त जज्बाती लग रहे हैं, प्लीज बिल्कुल बात। नहीं, मैं जज्बाती, मैं बिल्कुल चले रिलैक्स। अच्छा मेरा चले, अब सवाल आप बात करें ट्रुथ सीकर 4 भाई मिनट को बात बात करो, सवाल है। म्यूट है मेरे तरफ से। प्रिंसिपल साहब से सवाल है कि जब आप ईसाइयों से बात करेंगे, क्रिश्चियन से जब आपकी बात होगी, तो किन किताबों से बात होगी? इसका एक छोटा सा जवाब देने मुझे। आपने जो बाकी इन्होंने बातें की हैं वो जवाब देना है। उन्होंने तो गालियां ही निकालियां, उन्होंने क्या बात की है, क्या नहीं सवाल नहीं, क्या है? हाँ जी। जो उन्होंने उर्दू में बोला है, उन्होंने कोई गाली नहीं दी। उन्होंने तो इल्ज़ाम बाजी करना ही गालियां होती हैं ना, कि ये ऐसे हैं, ये झूठे हैं, वो उसमें तो जितनी उन्होंने बातें की हैं सारी ही गलत की हैं। उन्होंने जो हवाला दिया गलत अपने नहीं है, कीदे के लेकिन हिसाब गाली से, में और जाहिर है हम एक दूसरे पे इल्जाम ही लगाएंगे ना। नहीं हमारा इल्ज़ाम नहीं, कोई मोतबर बंदा, कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग इस तरह इल्ज़ाम बाजी नहीं करते, सवाल करते हैं, तरीके से सवाल करते हैं। उसमें तो मुझे उनकी सवाल की कोई समझ नहीं आई। एक उन्होंने हदीस का जो कह रहे हैं, जो अपने अकीदा बता रहे हैं, वो उन्होंने सरीहन झूठ बोला है। उस पर इवन अफजल राइट साहब जो कि अहमदी नहीं है, उन्होंने कहा है कि ये हदीस पे झूठ बोल के एक अकीदा बनाते हैं, गालियों पे, इनका अकीदा गालियों पे है, कि गालियां गालियों का जो है उसको जस्टिफाई करना, ये इन्होंने अकीदा बना लिया है और हदीस पे झूठ बोल के अकीदा बनाते हैं। उस हदीस में लफ्ज आया है 30 का, ठीक है, हाँ जी, अच्छा ही बात है, वो आप ये पूछ लें इनसे ताकि वो अपने टाइम में जवाब दें। वो 30 का लफ्ज आया है और इन्होंने वो सीधा जो है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पे अप्लाई कर दिया अपनी मर्जी से खुदा बन के, ठीक है, हालांकि उसमें उनका नाम ही नहीं लिखा हुआ उस हदीस में। अब इतना बड़ा अमदन झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक की हदीस के मुताबिक जो जानबूझ के झूठ बोलेगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो उसका ठिकाना जहन्नम है। और वो ऐसे जो लोग जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही नहीं मानते और उन पर झूठ बांधते हैं, वो मुसलमान हो सकते हैं? अच्छा, एक बात और है, अगर आप इजाजत दें तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो हदीस है ना, इनसे दो सवाल मेरे जवाब ले लें। एक ये कि जब ये ईसाइयों से बात करेंगे तो किन किताबों से करेंगे, एक ये सवाल है। और दूसरा ये कि जो हदीस पे इन्होंने झूठ बांधा है, वो हदीस मुझे पढ़ के सुना दें, उसमें हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का कहीं जिक्र है, वो मुझे दिखा दें। जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं अब आमिर भाई का ठीक है, टाइम अब मेरा टाइम लगे 4 जी। मिनट। अच्छा, पहली तो बात यह है, इन्होंने पूछा है कि जब आप क्रिश्चियनों से बात करेंगे तो किस शर्त पर बात करेंगे। वो कुरान ने बयान कर दिया, मैंने कोई नई शर्त घड़नी है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ये हमारा पहले दिन से असूल है, ये कुरान ने असूल बयान किया है। जो उनके और हमारे दरमियान कोई चीज कामन है उस पर बात करेंगे, ना कि उनकी शरीयत के हम पाबंद हैं कि उनकी किताब के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं हमने उनको मानना। भाई हम उसको मनसूख समझते हैं, हम उनके पाबंद नहीं हैं। हाँ, जो हमारे और उनके दरमियान कॉमन है, जिस पर हमारे कुरान ने भी जिस बात की तस्दीक की, हमारी शरीयत ने भी जिस बात की तस्दीक की, उसकी तरफ हम उनको बुलाते हैं। अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही, ये है।
یہ ہے ہماری اور उनके दरमियान बाहमी मुश्तरक बात। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जी वो हदीस में मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का कोई नाम है। भाई मिर्जा गुलाम अहमद हो या कोई भी हो, जिसने भी नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा किया वो कज्जाब है, दज्जाल है। नबी पाक का फतवा है, फतवा नबी अलैहिस्सलाम का चलेगा। आपका नाम नहीं है, मुसलमान कज़ाब का भी नाम नहीं है, असवद अंसी का भी नाम नहीं है, अखरस का भी नाम नहीं है, बिहाउल्ला का भी नाम नहीं है, यूसुफ का भी नाम नहीं है। जी जितने भी आए झूठे मुदैया ने नबूवत, इनमें से नाम किसी का भी नहीं हदीस में मज़कूर, लेकिन ये निशानी बता दी नबी अलैहिस्सलाम ने, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सारे कहेंगे मैं नबी हूं। क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी कहा कि नहीं कहा? जो भी नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करता है, खुद को नबी कहता है, किसी भी सेंस में कहता है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। ये हमारी शरीयत है, ये गाली है। कहते गालियां दी हैं, गालियां दी हैं। ये शरीयत, ये बयान शरीयत है। अज़ाल्ला हम खोल के देखें, आपके मिर्जा साहब कहते हैं कि गाली बयान शरीयत और बयान हकीकत गाली नहीं होती। जो बयान हकीकत है वो गाली नहीं होती, ये शरीयत का बयान है। ये मैं आपके सामने शरीयत बयान कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने नबूवत का दावा करना है उसका नाम गुलाम अहमद हो, बेहाउल्ला हो, अखरस हो, असवद अंसी हो, मुसलमा हो, किसी भी नाम से, जैद बकर, कुछ भी नाम उसका हो, कसे बाशिद, वो कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। उसको ले इस्लाम आप मुंह से जितनी बार बोलेंगे उतनी बार हम कज़्ज़ाब बोलेंगे, क्योंकि हमारी शरीयत है। हमने कोई किसी की शरीयत पर डाका तो नहीं डाला हुआ, किसी ने कोई चीज छीन के तो नहीं ली, चोरी करके तो नहीं लाए हैं। तो इसलिए अगर आपने इस शरीयत से बात करनी है तो इस शरीयत का फतवा तो है कज़्ज़ाब और दज्जाल होने का। आप कोई अलग शरीयत पेश करना चाहें, कहें कि इस्लाम से हमारा कोई लेना देना नहीं, इस शरीयत से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी ये अलग शरीयत है, और है भी आपके पास एक पूरा मजमुआ है वहियों का, उसको पेश क्यों नहीं करते लोगों के सामने? वो तज़किरा, वो अलबुशरा, वो वहियां लोगों के सामने पेश करें। आपकी अपनी उम्मुल मोमिनीन है, जब आपका नबी अपना है तो आपकी उम्मुल मोमिनीन आपकी अपनी, अहले बैत आपके अपने, पैंतन आपके अपने, 313 सहाबी आपके अपने, सहाबा आपने बनाए हुए, आपने वो रजी अल्लाह उनको कहते हैं, तो आप अपना अलग नाम क्यों नहीं रख लेते? झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस शरीयत से बात करोगे, इस शरीयत का फतवा लगेगा। भाई ये नाराज होने वाली बात नहीं है, ये जज्बाती होने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में नबी पाक खातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद किसी रंग में नबूवत का दावा करे, चश्मे से पानी पिए, चादर की बुक्कल मारे, खिड़की से, सिद्दीकियत की खिड़की से दाखिल 101 लफाजी करे, जब वो कहता है कि मैं इस शक्ल में नबी हूं, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। अगर आप इस शरीयत का इनकार करके अपनी अलग शरीयत बयान कर दें तो बहुत अच्छी, फिर हम कहेंगे भी ठीक है आपकी शरीयत के मुताबिक नहीं है, लेकिन हमारी शरीयत यहाँ पर मुकम्मल होगी। हम तो पहले ही कहते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमारी शरीयत मुकम्मल है, इसमें किसी झूठे मुदैया नबूवत को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जो मुदैया ने नबूवत इस्लाम का नाम लेकर इसमें घुसने की कोशिश करेंगे उनको उम्मत किक आउट कर देगी, जिस तरह से आपको किया है। तो इसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है, ये क़यामत तक का फैसला है। हंसना है, रोना है, इसी तनख्वाह पे काम करना है आपको। टाइम ओवर हो गया, आपने टाइम हो गया है। एक अच्छा, जवाब अब ये दिया। टी एक अहमद को मिनट, टाइम एक देना मिनट है। सफिया साहिबा, एक मिनट। जो उन्होंने एक सवालों का जवाब दिया ना, एक उन्होंने कहा कि जब हम ईसाइयों से बात करेंगे तो जो मुश्तरक है उनमें बात करेंगे, यानी कुरान और बाइबल में जो चीज़ें मुश्तरक हैं उस पर उनसे बात करेंगे। तो फिर हमारी बारी भी फिर इसी असूल को अपनाए ना, हमारी बारी कुरान से हम जब बात करवाते हैं कि कुरान से बात करें, जो मुश्तरक चीज़ है, आपको वहाँ पे क्या हक है कि आप हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पे की शख्सियत पे बात करें, जब आप ईसाइयों को ये हक नहीं दे रहे कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे बात करें। और हमारी जो शख्सियत पे जो आप बात करते हैं अपनी मर्ज़ी के मतलब बना के, हाशिया राई करके, आपको ये हक क्या है? आप भी फिर हमसे कुरान और हदीस से बात करें। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आप हदीस का कह रहे हैं, ये इतना बड़ा आप झूठ बांध रहे हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे। आपने ये झूठ बांधा कि जो भी नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल और कज़ाब है। ये अल्फाज मुझे हदीस से दिखा दें, हदीस का नंबर बताएं, ये अल्फाज मुझे दिखा दें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़ाब और दज्जाल है। जो हदीस में 30 का लफ्ज़ आया है, 30 का जिक्र हुआ है, ये नहीं कि क़यामत तक जो भी आएगा वो कज़ाब और दज्जाल है। अब ये कितना बड़ा झूठ आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमदन बांध रहे हैं, जानबूझ के बांध रहे हैं। आपको कोई खौफ नहीं आता? आपको कितना क्लियरली हम बता रहे हैं कि वहाँ पे क़यामत का जिक्र, क़यामत तक झूठे आने का जिक्र नहीं है, 30 का जिक्र है। उस बताने के बावजूद आप झूठ बांध रहे हैं। और ये बात आपके अपने
آپ کے اپنے جو سائٹ سے جو لوگ ہیں جو غیر احمدی ہیں جیسے افضل ورائٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حدیث پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اب اتنا تکبر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتنا تکبر دکھا رہے ہیں, اتنا غضب دکھا رہے ہیں, اور یہ بالکل منکرین کا طریقہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتے اور اس کے برخلاف جھوٹ باندھ کے ایک نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہوئے ہیں. کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے ہی نہیں اور آپ دھڑا دھڑ اس کو اپنی طرف سے الفاظ باندھی جا رہے ہیں. تو مجھے وہ حدیث دکھائیں اور پھر یہ آپ سوال کو آ کیا گیا ہے. حق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شخصیت پہ بات کرنے کا جب آپ یہ حق عیسائیوں کو نہیں دیتے یا دوسرے نان مسلمس کو نہیں دیتے. جی جزاک اللہ. جی میں نے ٹائم ہو ٹائم گیا، نہیں 4 بتایا منٹ تھا. ٹائم لگے، 4 منٹ ہے، کوئی بات جی نہیں، کوئی منٹ، 4 عامر منٹ بھائی ٹائم. وہ 4 منٹ تو ہیں لیکن آپ کی بات نہ میں پہلے بتا رہی ہوں ٹی احمد پہلے بھی بولنے کی کوشش کرے تھے ان کو موقع نہیں ملا. لیکن ون آن ون ان کی میری بات ہو رہی ہے نا، یہ ہو جائے ختم، اس کے بعد آپ بلال بھائی لیکن کو میری بات کا دیں. جواب دیں. نہیں ہاں نہیں، جی میری دینے طرف لگا، میں دینے سے لگا. میری طرف سے لاما صاحب کو میرا ٹائم دیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو لاما صاحب نے اچھا مجھے نہ بات کی ہو. ان مجھے کو بات ٹائم دینے کا بھی مجھے مجھے بھیا بات نیچے اتار دیں، مسئلہ نہیں. 4 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 منٹ 4 جواب منٹ دیں. لگائیں بھی میرے، خاموش ہو جائے، اب میوٹ ان میوٹ نہ کریں. میں اچھا بات نہیں، یہ ہے، 4 اور منٹ میوٹ آپ نے میوٹ بات کر، کی، میوٹ میں نے میرا کیا ٹائم نہ ضائع کر. 2 منٹ کافی ہے. اس کو نیچے اتاریں بھائی، اس نے چپ نہیں کرنا. ان کے پاس تو 2 منٹ سے زیادہ بات کرنے والی ہوتی نہیں بیچاروں کے پاس. ان کی تو پشتو ختم ہو جاتی ہے نا 2 منٹ کے بعد، 2 منٹ بھی نہیں بات کر سکتے. اچھا چلیں آپ جس بات کریں ہاں اور فکر بھائی آپ بات نہ بولیں گا. اچھا، جی بولیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جس طرح کرسچنز اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی مشترک چیز ہے تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کوئی مشترک ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. قرآن اور حدیث ان کا دعویٰ ہے. ابھی میں آیا، جب میں نے پہلی بات نہیں سنی، ابھی میں آیا ہوں تو آپ کا بھائی کہہ رہا تھا 200 سال بعد حدیثیں لکھی ہیں، حدیثوں میں تضاد ہے. آپ کے مرزا صاحب کہہ کے گئے حدیثوں میں تضاد ہے. آپ کے اور ہمارے درمیان حدیثیں تو ویسے ہی فارغ ہوگی. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ہے. اگر حدیثوں کا وجود نہ بھی ہوتا تو بھی میرے دعوے کو کوئی حرج نہیں پہنچتا تھا. میرے دعوے کی بنیاد میرا الہام ہے اور قرآن ہے. جو حدیث قرآن کے خلاف اور میرے الہام کے خلاف ہو اس کو ردی سمجھ کے ہم پھینکتے ہیں. آپ کے ہمارے درمیان کیا مشترک رہ گیا قرآن کے یہی اسی قرآن کے اندر مرزا صاحب آپ کے جن کو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہماری نظر میں وہ کذاب اور دجال ہیں کیونکہ ہماری شریعت کہتی ہے. انہوں نے اسی قرآن سے پہلے حیات مسیح ثابت کیا، اسی قرآن سے ختم نبوت ثابت کی، اور اسی قرآن سے اجرائے نبوت ثابت کرنا شروع کر دی، وفات مسیح ثابت کرنا انہی آیتوں سے. یہ بھی نہیں کہ آیتیں اور نکالی ہیں، آیتیں بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے. اس سے پہلے حیات مسیح ثابت کیا کرتے تھے اور انہی آیتوں سے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، انہی آیتوں سے بعد میں وفات مسیح ثابت کرنے لگ پڑے. جس آیت سے ختم نبوت ثابت کرتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی آیت سے اجرائے نبوت ثابت کیا مصوف نے. پوچھو ان سے، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے. المختصر یہ، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے. آپ نے قرآن بدل ڈالا، آپ نے حدیثوں کا انکار کر دیا، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے. بھائی ہم نے اسی لیے آپ کو فارغ کیا ہے کہ آپ کا اس امت سے، اس شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کا الگ مذہب ہے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ آج جب آپ کا الہامی کلام الگ ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے، تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یار مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں آپ اعلان کرتے کہ یہ ہماری شریعت ہے، یہ تذکرہ ہماری کتاب ہے. تم سے بہائی اچھے رہے، انہوں نے دلیری کے ساتھ اس وحی کو قبول کیا جو بہاء اللہ ایرانی نے پیش کی. اس کا مجموعہ الواح لکھا ہوا ہے کتاب مقدس کے نام سے، اس کو انہوں نے شریعت قرار دیا ہے، اس پر انہوں نے حصر کیا ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے. آپ کے مرزا صاحب بیچارے زور لگا کے کہتے تھے میں اس پر ایسے ہی ایمان لایا جیسے قرآن پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر. تو اس کے برابر اس کو درجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس پر اس طرح کا ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو اپنی شریعت کیوں نہیں بتاتے؟ اور اس کو مسلمانوں کے بالمقابل اپنی شریعت کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو مسلمانوں سے؟ جب مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ سب کذاب اور دجال ہیں، تو آپ ایک جھوٹے مدعی نبوت کو ہمارے سامنے پیش کر کے کیوں جھگڑا کرتے ہو صبح سے لے کر شام تک؟ ہم تو یہ جھگڑا آپ سے چاہتے ہی نہیں. آپ اپنا یہ شریعت کا الگ اعلان کریں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح بہائی امن اور سکون سے رہ رہے ہیں، آپ بھی امن اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں. بے شک قرآن کے ساتھ جتنا مرضی جا کے گھر بیٹھ کے اس کے اندر سے اجرائے نبوت نکالیں، ختم نبوت نکالیں، وفات مسیح نکالیں، حیات مسیح نکالیں، معجزات کا انکار کریں، نزول الملائکہ کا انکار کریں، لیلۃ القدر کا انکار کریں، نبی پاک کے معراج کا انکار کریں، جو کچھ آپ کو گالی دینی آتی ہے دے لیں گھر بیٹھ کے، لیکن مسلمانوں سے الگ ہو جائیں.
अहले इस्लाम ने आपको अलग कर दिया है। बाकी रही वो हदीस, हदीस के अंदर वो मुख्तलिफ तुरक हैं, 30 के करीब के अल्फाज, मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें करीबन के अल्फाज पढ़े, सुने नहीं आपने? करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, करीब हैं 30 के करीब, वो 30 से ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, वो झूठे हैं, कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, वो सब अपने आप को नबी कहेंगे। मैंने वो हदीस पढ़ी है। 30 का कोई हिंसा फिक्र नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये 30 ही होना, 29 नहीं हो सकते, 28 नहीं हो सकते, या 35 नहीं हो सकते। हाँ, ये जितने भी हैं ये सब कज़ाब हैं जिन्होंने नबी पाक के बाद बंदा करें, हाँ बोले बोले, जो भी आएगा वो झूठा होगा। आप सारे झूठे हैं क्योंकि ला नबी आबादी हो गया, सारे झूठे। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। 30 के करीब कहे ना, अपने टाइम में बात करो, फिर मेरा टाइम होगा भाई, मैं बोलूंगा, म्यूट कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। ये कि आप इतने ज्यादा जो है नफरत में आके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी झूठ बांधना शुरू कर देंगे। भाई आप 30 का लफ्ज कहें, आप जो हदीस है वो कहें। करना है। और दूसरी बात यह है कि आप क्या क्रिश्चियन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे बात करने का उन्हें हक नहीं देंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे बात करने का उन्हें हक नहीं दे रहे क्रिश्चियंस को। अहादीस से बात करने से आप कहते हैं कि हम उनसे अहादीस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे दरमियान मुश्तरक नहीं है। और अक्सर आप क्रिश्चियन से जब वो हदीस लेके आते हैं, आप जो है उनसे फिर कतराते हैं, आप उनसे बात नहीं करते और उनको हक ये नहीं देते। तो फिर आपको क्या हक है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे की शख्सियत पे बात करने का और उस पर हाशियारी करके अपनी मर्जी के मतलब पहना के हमारे से बात करने आना? कुरान से आप बात करते हुए हमसे भागते हैं। आप कहते हैं कुरान और हदीस से अहमदियों से, आपके उलमा कहते हैं, आपने खुद भी कहा हुआ है कि कुरान और हदीस से अहमदियों से बात ना करना। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि यही तो चीज़ मुश्तरक है, इसी से तो सारी सच्चाई खुल जाती है। वहाँ से आप भागते हैं और शख्सियत पे बात करते हैं अपनी हाशियाराई करके, जो कि हक आप ईसाइयों को नहीं देते। या तो फिर आप ये कहें कि हाँ ईसाई आके हमसे अहादीस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे बात करें, आप पहले ये कहें, फिर हमें आके कहें कि हमने आपके हवालों पे बात करनी है। और जब हमारे हवालों पे बात करेंगे हम 100 दफ़ा उसका जवाब देंगे, लेकिन आपने हमसे सवाल करना है और हमने जवाब देना है। ये नहीं कि आपने अपनी हाशियाराई करनी है और हम आपकी हाशियाराई सुने। जी जज़ाकल्लाह। मेरा टाइम लगाएं जी, मेरा टाइम लगाएं। इनके पास नहीं है, इन बेचारों के पास ना दलाइल है, ना इनके पास वोकैबुलरी है। इनकी इतनी ही पश्तो खत्म हो जाती है, 1 मिनट के अंदर अंदर इनकी छुट्टी हो जाती है। बात यह है कि जब आपको बता दिया, मैंने सबूत दे दिया कि कुरान और हदीस से इसलिए आपसे बात नहीं करते, हदीसों का तो आपने साफ इनकार कर दिया ना। वो तो अभी भी कर रहे, 2 मिनट पहले भी कर रहे थे और 100 साल पहले भी कर रहे तुम हदीसों का। कुरान का जो खिलवाड़ कुरान के साथ तुमने किया है कि इसी कुरान से, इन्हीं आयतों से हयात मसीह साबित किया, उन्हीं आयतों से वफात मसीह साबित कर दिया। तो भाई ये वारदात जो आपने कुरान के साथ किया, हम ये कहते हैं कि आप कुरान और हदीस के फॉलोअर नहीं हैं। हमारे और आपके दरमियान कुरान और हदीस मुश्तरक नहीं है। ये बात कितनी दफा बताई जाए आपको? हमारे और आपके दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं है। रही बात ये कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उस झूठे मदय्यन नबूवत की कोई तहरीर आपके सामने पेश करते हैं, भाई वो हम आपके मुसलमात पेश करते हैं आपके सामने। आपके वो झूठा मदय्यन नबूवत है, उसको बर्दाश्त कर लो। हमारी शरीयत के मुताबिक वो झूठा मदय्यन नबूवत है। सफिया साहिबा खामोश हो जाना, बेच ना बोल। तू ले सलाम आंदा रहा, मैं तेरी जुबान फड़ी है। तू अपना अकीदा बयान करन चजाद है, मैं अपना अकीदा। ओए हेलो चुप कर। तू अपनी मेरी गल सुन, तू अपनी गल करन च आजाद है तो मैं अपना, एदा नाम मसावाती, ओए एदा नाम मसावाती, इंसानी मसावत है। एनू कहंदे नहीं फ्री स्पीच। ओए आस्तीन दे सप्पो, एनू कहंदे जे फ्री स्पीच, एनू कहंदे जे इंसानी मसावत ते जे तू अपना ओके, मुझे नहीं करनी। अच्छा मुझे बात ही नहीं अच्छा, करनी। बात सुने बाजी। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी अस्सलाम बाजी? वालेकुम। आ रही है। अब टी अहमद को बोलने देते हैं, बहुत देर से बैठे अस्सलाम हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतरीन हाल अस्सलाम ये है वालेकुम। जी बादशाह अस्सलाम वालेकुम। जावेद बाजी। एक देखें, अस्सलाम दो वालेकुम। दो बंदों ने बाजी बात करनी है ना, अस्सलाम वालेकुम। 2 बंदों ने बात करनी है। वल्सलाम अला मन तबा अल हुदा। अस्सलाम वालेकुम। 2 बंदों ने बात करनी है बिलाल, उनको बोलने दो। बाजी। 2 बंदों ने बात करनी है। जब एक बंदा बात कर रहा हो तो उस दूसरे को नीचे उतार दे, और दूसरा बंदा बात कर रहा हो तो पहले को नीचे उतार दे। ना इकट्ठे बैठेंगे और ना लड़ाई होगी, और इक्वल टाइम दे। जी ये है बेहतरीन बात है। उनकी बात सुन। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी टी अहमद भाई, माजरत आपको काफी देर वेट करवाया। सफिया साहबा, 2 3 4 बातें करनी है मैंने अब, क्योंकि मुझे टाइम मिला। प्लीज मुझे मौका देना, उतार नहीं देना। नहीं, वो उस वक्त ये जो लड़ाई होगी इंसान तो अभी क्यों आप उतारा था? आप बोले।
ये जो हम इतने नाजुक नहीं है बाजी, उनको उन्होंने जो बात करनी उन्हें करने दे, मेहरबानी करें। हमें ना आप इतनी हमदर्दी दिखाएं, हम इतने नाजुक नहीं है, उन्हें जो बात करनी उनको जाती है मुकम्मल। मैंने अभी एक फिक्रा बोला बोलने दो उनको जी। अम्मा साहब का टाइम सफिया साहब आप दिया। इनको बात करने दें, सफिया साहब आप इनको बात करने दें, क्योंकि ये बात नहीं करने देते तो फायदा। ठीक है जी, नहीं नहीं आप करें बात अपना। मैं ये कह रहा था कि लामा साहब का टाइम जो है वो अभी 2 मिनट रहता था। हाँ जी वो करते हैं, अभी करते हैं। हाँ ये देखे ना, मसावात और इंसानी हमदर्दी और फ्रीडम ऑफ, नजम नहीं है ना तुम। मैंने इसलिए आपको बाजी मेरी बात सुने, वल्लाही मुखलिस मशवरा ये है कि जब एक बंदा बात, हम में से किसी का यहाँ बैठना जरूरी नहीं है, 2 बंदे बात कर रहे हैं ना, तो मैं बैठ के भी क्या कर लूंगा, एक को उतार दे और एक को पिक करें, दोनों में से, और जब वो आ जाए तो उसको पिक कर ले, जब उसकी बात ये बेहतरीन तरीका होगा। यकीन माने अच्छे तरीके से। नहीं वाटर भाई उनका 2 मिनट रहते थे, उनको उतार दिया गया बीच में, उनको उतार दिया था, वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। जी जी, उनको दोबारा उठा ले ताकि वो अपने 2 मिनट मुकम्मल कर। टी अहमद भाई की बात सुन लो। जी जी बिल्कुल 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 ठीक जी। टी अहमद भाई आप बोले। अब ये जो इंसान आया था अब इसको इंसान कहते हुए मुझे थोड़ा सा हो रहा है, मैं वजह बताऊंगा। क्योंकि इसके लिए कुरान मजीद में, इस तरह के इंसानों के लिए कुरान मजीद में खुदा ताला ने फरमाया कूनू किरादतन खासिन, जलील बंदर। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह के लोगों के लिए मेरी उम्मत पे एक ऐसा टाइम आएगा कि उलमा ओहुम शर्र मन तहत अदीमिस समाए, उस मेरी उम्मत के उस वक्त के जो उलमा होंगे वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। और ये भी फरमाया कि फितने उठेंगे इन्हीं में से और इन्हीं में वापस दाखिल हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं ये शख्स इस ब्राड पे वापस आया और आते साथ इतना बड़ा बहतान लगाया इसने मूसा साहब पे और भट्ट साहब पे कि उन्होंने ये कहा है कि हम बाइबल की बात मान जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं कही बाइबल की बात मान जाएंगे। शियाने अली ने उनसे बाइबल का हवाला मांगा, शियाने अली ने उनको हवाला दिया। ये बंदा इंतहाई किस्म का चर्ब जुबान, ये इसके लफ्ज यूज कर रहा हूं मैं, बुरा नहीं लगे, गालड़, बदतमीज, गालीबाज, लवातत करने और करवाने वाला। क्योंकि ये इंसान ने जब इससे पूछा गया बराड पे कि तुमने लवातत करवाई, तो आगे से हंस के कहते हैं हाँ मैंने तो करवाई होगी, मैं उतना तो नहीं हूं कि जब वो उनको ना सफिया बाजी मैं प्रोटेस्ट करूंगा। टी अहमद साहब को मुकम्मल टाइम दिया जाए, ये ज्यादती है। जी 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 टी अहमद भाई हमें जब प्रॉब्लम नहीं है सफिया साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम कह रहे हैं बात करें। मैं फिर नहीं, वो फिर बाद में जो है वो सारी चीजें जो हैं भाई मैं मसावात में अफजल वड़ैत साहब के इस असूल को, मसावात और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं इसके हक में हूँ। टी अहमद साहब को मुकम्मल टाइम दें, ये 15 मिनट आधा घंटा जितनी लंबी बात करना चाहे इनको टाइम दें, लेकिन वो भी बोलेंगे ना फिर आगे से। तो मसावात तो इसी को कहते हैं ना। नहीं ये कोई मसावात नहीं है, गलत है। ठीक है चले, अब लामा साहब का टाइम है मेरा ख्याल से तो। हाँ जी, लेकिन ये कि ये जी जी लामा साहब कोई ऐसी बात। मेरे 4 मिनट खत्म हो गए। अब मेरा टाइम है, अब मेरा टाइम है बाजी सबको नीचे उतार दे, जिस बंदे ने बात करनी उसके अलावा सबको नीचे उतार दे, मुझे भी नीचे उतार दे। पहले भी ट्रुथ सीकर बीच में बोला है तो बदमजगी पैदा हुई है ना। गालर ढूंढ रहा है ना, इसको गालर इसको देंगे। मैं तेन दे के टोरन लगा, मेरा पुत्र फिक्र ना कर, घबराना नहीं तू, जो तू लफ्ज कि इन्होंने जो बोला आप इनको बोल दीजिएगा। हाँ। लेकिन आमिर भाई अकाबरीन तक नहीं। मुझे भी नीचे उतार दे, मेरा भी बैठना जरूरी नहीं है। काबर का क्या मानी है? काबर का क्या मानी है भाई? जो मैं भी किसी का काबर हूँ भाई, मैं भी किसी का बड़ा हूँ। नीचे मेरे छोटे भाई हैं, उनका खून जल रहा है ऐसे ही, जिस तरह अभी मैं लगा हूं ना इंजेक्शन देने, ऐसे ही उन्होंने जो बकवास की है, ऐसे ही मेरे भाइयों का भी खून जल रहा है। वो भी मुझे अपना काबर ही कहते हैं, वो तो मुझे हफिज़ुल्लाह, अय्यदुल्लाह, नसरुल अजीज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अभी आपके सामने बोल रहे थे। उनको भी मुझसे ऐसे ही प्यार है। तो इसने एक असूल मुतय्यन किया है, इस टी अहमद ने, कहता है कि अगर किसी से ये पूछा जाए कि क्या तुमने लवातत की है और वो आगे से जवाब ना दे तो साबित हुआ कि ये लुती है। बहुत अल्लाह,
पता करो कौन है जिसके लिए मुबाहला अखबार छपता था और उसको कहा जाता था क्या तूने सकीना के साथ जिना किया है, वो बोलता नहीं था, वो जानी था। उसके बारे में जाके लाहौर हाई कोर्ट में उसके मुरीदों के जाके अल्फाज पढ़े, वो जानी था इस आपके असूल के मुताबिक, क्योंकि वो आगे से बोलता नहीं था। उसको कहते थे बताओ तुमने जिना किया है, हमारी बहन की इज्जत लूटी है। फजल करीम और अब्दुल करीम दोनों पूछते थे ना, जवाब नहीं देता था। अब इसके टी अहमद के मुताबिक, इस असूल के मुताबिक वो जानी था। ये तो होगी इसकी इस बात का जवाब कि जब आप किसी को सवाल करें और वो आगे से उसकी सफाई ना दे तो वो जानी होता है, वो लुती होता है। ये तो होगी एक बात क्लियर। दूसरी बात ये है कि वो जो पहले भी ट्रुथ सीकर बीच में चीखे मार रहा था, भाई देखें इसी का नाम फ्री स्पीच है। जब आपने अलैहिस्सलाम बोला मैंने माइक अनम्यूट ही नहीं किया, मैं बोला ही नहीं, इसी का नाम मुसावात है। और ढोंगियो इसी का नाम फ्री स्पीच है, और ड्रामेबाजो इसका नाम फ्री स्पीच है कि तुम अपनी मर्जी से अपना अकीदा बयान करो, मैं अपनी मर्जी से अपना अकीदा बयान करूं। तुम अपने अकीदे का इजहार करने में आजाद हो, मैं अपने अकीदे का इजहार करने में आजाद हूं। तुम अपनी अकीदत का इजहार करो, मैं अपनी अकीदत का इजहार करूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुटलाने वाले कज़्ज़ाब और दज्जाल को कज़्ज़ाब और दज्जाल कहूंगा। जिसने मेरे नबी को झुटलाया, जिसने मेरे नबी की तकज़ीब की, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, 30 के करीब झूठे आएंगे, कज़्ज़ाब और दज्जाल। वो खुद को नबी कहेंगे, हमारे नबी ने कहा है। ये गाली है, इनके नजदीक ये गाली है। भाई ये शरीयत का बयान है, इसको बर्दाश्त करें या शरीयत का पीछा छोड़ दें। इस शरीयत में क़यामत तक के लिए आपके पास यही आपको फतवा मिलेगा, यही जवाब मिलेगा कि जिसको आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ये कज़ाब है। अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके लिए कुरान में सनद नाजिल हुई है। अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की हैं। और ये कौन है जिसको अलैहिस्सलाम कह रहे हो? इसके लिए तो हमारे कुरान में, हमारे साहिब कुरान के फरमुदात में एक झूठा मदय्यन नबूवत होने का फैसला है। तो इसलिए इसको बर्दाश्त कर लें, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, इनमें बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि हम अपने अकीदे का इजहार करें, हम अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें, दूसरा बंदा मुंह को टेप लगा के चुप करके सुने, अपने जज्बात पर काबू रखे, हम उसके सामने झूठे मदय्यन नबूवत को लेस्लाम लेसलात बोलते रहें, वो चुप करके सुनता रहे। जब वो कज़ाब दजाल कहे हम चीखें मारनी शुरू कर दें, हम माइक खोल के रोला पाना शुरू कर दें और बाद में कहें कि ये सिस्टर आपने ज्यादती की है, फलाने ने ज्यादती की है। भाई क्यों आप करते हैं वो पहल? फ्री स्पीच का मतलब ही ये है, मुसावात का मतलब ही ये है कि जो बराबरी आपके लिए है वो मेरे लिए भी है, जो हक आपके लिए वो मेरे लिए भी है। अगर आप अपना अकीदा बयान करने में आजाद है, मैं माइक नहीं खोलता, तो जब मैं अकीदा अपना बयान करता हूं आप भी माइक ना खोलें और सुने कि इस्लामी शरीयत में नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबूवत का दावा करता है वो कज़ाब और दज्जाल है। उसके लिए अलैहिस्सलाम तुम कहो, हम उसके लिए कज़ाब और दज्जाल कहेंगे। तो अगर हमारे साथ बात करनी है, आपके अपने मुसल्लमात हैं, हमारे अपने मुसल्लमात हैं, हमारे और आपके दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं है। ना कुरान हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, ना हदीस हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तुम्हारे अपने मुसल्लमात हैं, हमारे अपने मुसल्लमात। हमारे मुसल्लमात में से, कुरान और सही हदीस में से जिस मिर्जाई का दिल चाहता है वो आके मेरे सामने कोई सवाल करे, कोई दलील पेश करे, मैं इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो मैं जवाब आगे आपके मुसल्लमात से आपके आगे सवाल रखूं, उसका जवाब आपने देना है। वो मैं रूहानी खजाइन से रखूं, वो मैं मलफूजात से रखूं, वो मैं मजमूआ इश्तिहारात से रखूं, मकतूबात से रखूं, वो मैं अनवारुल उलूम से रखूं, मैं तशीजुल अज़ान से रखूं, मैं अखबार अल फजल से रखूं, मैं जहां से भी रखूं, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तुम पाबंद हो अपने मुसल्लमात के, मैं अपने मुसल्लमात का पाबंद हूं। मेरे मुसल्लमात में से पेश करो, झूठी पेश करोगे हदीस, मैं कहूंगा ये झूठी है, ये नबी पाक का कौल नहीं है। ये कह रहा था नबी पाक ने फरमाया ये बंदर और सूअर हैं। अल्लाह की कसम हमारे नबी ने नहीं फरमाया। मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मेरे नबी ने हमें नहीं कहा। हाँ, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने तुम्हें कहा है कि खंजीर की तरह जाके सीधे नेज़े को लग जाते हो। ओ होश कर लो, पहले कोई 4 अक्षर पढ़ के जाओ, जे किसी ने गल करनी है ना घर तैयारी करके जाओ। तुम्हें खंजीर कहा है उसने, तुम्हारे खलीफा ने तुम्हें खंजीर कहा है। अगर कहो तो मैं अभी यहां स्कैन लगा देता हूं कि तुम्हारे में ना कोई वुसअत है, ना कोई सोच है, कुएं के मेंढक की तरह हो तुम और खंजीर की तरह हो तुम। तुम्हें कुएं का मेंढक कहा, तुम्हें खंजीर कहा उसने। इसके लिए तो सही सनद है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सनद से साबित हो जाए, मुझसे मुंह मांगा इनाम ले, हमारे नबी का ये कौल ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं फरमाई है जो ये झूठ बोल के नबी पाक की जुम्मे लगा रहे। जब बता दिया जाए कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, ये ज़ईफ मौजू मन घड़त बात है, फिर जो बंदा उसके बाद बयान करे उसके लिए नबी ने फरमाया
मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वो जहन्नमी है, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया है। लेकिन इनको ना जहन्नम की परवाह है, ना इनको कोई दुनिया का कोई डर है, शर्म और हया है कि दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, झूठे पड़ रहे हैं। मुबासा लुधियाना में शेख बटालवी के सामने इनके मुंह बोले नबी ने शेख बटालवी के सामने एक हदीस रखी कि नबी पाक ने फरमाया इब्ने सैयाद के दजाल होने से डरता हूं। नबी पाक ने फरमाया। शेख बटालवी ने कहा कहां है वो नबी पाक का कौल, कहां नबी पाक ने फरमाया। ये तब से इनको विरासत मिली हुई है। झूठ की घुट्टी इनको जब पैदा होता है मिर्जा, इनको झूठ की घुट्टी दी जाती है। आपने नबी पाक का नाम ले लेकर झूठ बोलना है, मुसलमानों को गालियां देनी है। और जो कोई मुसलमानों में से अगर कोई बंदा तुम्हारे लिए मामूली सा नरम गोशा अपनी किसी तकलीफ की वजह से, अपने किसी मसले की वजह से रखे, उससे जाके सारों ने चिमट जाना है। अलफ से लेकर या तक जितने हैं सारे उससे जाके मक्खियों की तरह चिमट जाओ। ओए होए होए खुसरियां दे घर मुंडा हो पिया, सानू बंदा लभ गया, साडा मैती। ले जाओ ऐसे बंदे को। हमारी नजर में ये है मुसावात और ये है तरीका गुफ्तगू करने का कि आप हमारे मुसलमान से बात करें, हम आपके मुसलमान से आपके आगे अपना अकीदा हम आपके मुसलमान से साबित करेंगे। पूछा था ना मैंने अजीम भट्ट से कि मिर्जा साहब ने खत्म नबूवत की आयत से खत्म नबूवत साबित की कि जराए नबूवत साबित की है। बोलता ही नहीं था। जब मैंने दीवार के साथ लगा के पूछा तो कहता है खत्म नबूवत भी मिर्जा साहब ने साबित की है, जराए नबूवत भी साबित की है। तो इनके साथ कुरान से बात करनी है। भाई हम तुम्हारे सामने तुम्हारा रूहानी खजाइन पेश करेंगे, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे मलफूजात, इश्तिहारात, मकतूबात पेश करूंगा। तुम मेरे सामने मेरा कुरान पेश करो, मेरे नबी का कौल पेश करो, मैं उसका जवाब दूं, तुम उसके जवाब दो जो तुम्हारे घर में लिखा हुआ है। ये एक आसान तरीका है। फिर इसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि शरीयत के जो कवानीन हैं, अगर आप आजाद हैं अपना अकीदत का इजहार करने में, तो शरीयत ने जो कुछ हमें बताया है कि नबी पाक के बाद इसने नबूवत का दावा किया, ये कज़ाब, हम वो कहेंगे उसको। आप ये सोच लें, बात करनी है बिस्मिल्लाह, नहीं करनी अपनी बराडों में बैठ के आप गालियां दें, हमारी बराडों में बैठ के हम कज़ाब को कज़ाब कहते रहेंगे। इससे बढ़कर कोई माँ बहन की गाली दे, हम उससे बरात का ऐलान कर, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हम उसके जिम्मेदार, हमने कभी किसी को ना माँ बहन की गाली दी है, ना हम किसी की माँ बहन की गाली देने के जवाबदेह हैं। हम वो कहते हैं जो शरीयत ने कहा है कज़ाब और दजाल, नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करने वाले। कभी मैंने माँ बहन की गाली नहीं दी है। ये कहते हो गालियां दे रहे कज़ाब दजाल बोल रहे हो, ओ भाई ये गालियां नहीं है, ये नबी पाक की वही वाली पाक जुबान से निकले हुए वो अल्फाज हैं जिनको दिल करता है गले का गहना बना लें, गले की तख्ती बना के लटकाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, उनके बाद जिसने नबूवत का दावा किया, किसी रंग में किया, किसी तरीके से किया, किसी खिड़की से दाखिल हो, किसी चश्मे से पानी पिए, किसी चादर को ओढ़ के बुक्कड़ मार के आए, कोई ड्रामा करे, गैर हकीकी हूं, गैर मुस्तकिल हूं, मैं मुजाजी हूं, मैं जिल्ली हूं, मैं बरूजी हूं, मैं अक्सी हूं, मैं फना, जो भी करे, जब उसने कहा मैं नबी हूं, वो कज़ाब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। आपने फरमाया अना आखिरुल अंबिया, मैं नबियों के आखिर पर हूं, व अंत आखिरुल उमम, और तुम आखिरी उम्मत हो। हम आखिरी उम्मत हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके बाद जो नबूवत का दावा करेगा, हमारी शरीयत तो ये कहती है, अपनी शरीयत अलग कर लो, और कर लो वेला जे, अपनी शरीयत अलग कर लो, शरीयत का अलग नाम रख लो। देखो भाई कितने सुकून से रहते हैं। उनके लिए ना कोई कानून साजी होती है, ना कोई 295C की तरह। सुबह से लेके वहां पर, मेरे तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने देखा कई साथी मुझे मैसेज कर रहे थे, वो जी सारा वो कर रहे हैं आपके खिलाफ, तैयारियां कर रहे हैं, केस बनाना है, कहते हैं 295। और क्यों आपके लिए ये मसले मसाइल हैं? इसलिए कि आप उस चीज से चिमट कर उस पर कब्जा करने का उसके लिए कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। अल्लाह की इस धरती पर तुम्हें यह जगह नहीं मिलेगी कि तुम मुसलमानों के देश में, मुसलमानों की किसी सरजमीन में खड़े होके ये कहो कि तुम मुसलमान हो और ये शरीयत तुम्हारी है। तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं, तुम अलग हो। हाँ, यूरोप में बैठ के, यूके में बैठ के जो मर्जी हर्जा सराइयां करते फिरो। यहाँ पर कितनी कितनी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई है कि एक मिर्जाई ने आकर सईदा जवेरिया की शादी को मोहम्मदी बेगम से मिलाया। एक लानती ऐसा मरदूद पैदा हुआ, उसने मारिया किब्तिया का नाम लेके कल वीडियो बनाई है। अब बताएं, ये दुश्मन रसूल हैं कि नहीं? ये दुश्मन इस्लाम हैं कि नहीं? ये आस्तीन के सांप हैं कि नहीं? हम इनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? कुरान और हदीस से, ये तो दुश्मन कुरान है, ये तो साहिब कुरान के सबसे बदतरीन दुश्मन है। हाँ, ये बात अलग है कि मुसलमानों ने डंग निकाल दिया सांप का। सांप डंग मार नहीं सकता, अल्लाह की तौफीक और रहमत से मुसलमानों ने वो डंग खींच के बाहर निकाल दिया है, वरना ये इतने जहरीले सांप हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा वो किसी भी अपनी मजबूरी की वजह से एक लफ्ज इनकी हमायत में कह दे, सारे मिर्जाई इकट्ठे हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह।
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ दुनिया में नजर आया है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਤੀ है। हकीकत ये है कि उस बंदे की कोई अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। जो शरीयत है ना, शरीयत तो अगर बराबरी का दर्ज देती तो ये है बराबरी जो यहाँ पर की जाती है, हमारे घर में की जाती है, हमारे प्लेटफार्मों से की जाती है। मैंने कभी आज तक कहा है मेरी ब्राड पर आके ले सलाम ना कहो? कल परसों मुझे ये 1122 कह रहा था, तुमने मना किया। मैंने कहा वो दिन दिखाओ जिस दिन मैंने मना किया, पर वो मेरी ब्राड पे आके ले सलाम। फिर मैं अपना जो मैं शरीयत अपनी बयान करूंगा, मैं उसको कज़ाब और दजाल कहूंगा। कब कहूंगा वो मेरे सवाब दी, तो मैंने कब कहना है? क्यों? मेरी शरीयत में यही लिखा हो।